क्वेश्चन लिखना पड़ेंगे इसमें आप लोगों को, है ना. So today we are discussing the questions based on the 3D vectors. So I'm taking previous year board paper question from 2016. क्वेश्चन नोट करना होगा आपको. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, थोड़ा फास्ट लेकिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of perpendicular drawn from the point A, that point is having the coordinates, point A is having the coordinates is -184, drawn from the point A to the line joining the points, B and C. Find the coordinates of foot of perpendicular drawn from the point A, that point is -184, to the line joining the points B and C. Also find the image of that point about that line. Also find the image of the point in the line. That means you have to find out foot of perpendicular as well as image both of this point in the line joining the points B and C. So बहुत टाइम नहीं, point is given, an equation of line joining B and C. सबसे पहला टास्क क्या होगा आपका? सबसे पहला टास्क होगा you are going to write the equation of the line BC. दोनों पॉइंट्स अवेलेबल हैं, you can write the equation of line BC easily. Equation of line BC can write like x minus 0, y plus 1, z minus 3, it is 2 minus 0, minus 3 plus 1. It is simple as equation of line joining the 2 points. Easily we can write that equation of line. That is coming as x by 2 equals to y plus 1 on minus 2 equals to z minus 3 upon minus 4. That is the equation of line BC. ठीक है. What we want foot of perpendicular in image. क्या अप्रोच थी? Let's say that's the line there. ये line है, ये point A point which is -1, 8 and 4. Line is available with you, that is line joining the 2 points BC. That is this line. We want foot of perpendicular. Let's say that point is P point, as well as we also want to find out the coordinates of image. और आपको ये clear है कि अगर आप foot of perpendicular find out कर लोगे तो image तो निकल ही जाएगा using the section formula, midpoint formula. Approach क्या होगी वैभव? क्या बोलते हो, क्या approach है इसमें? What is the approach to find out the foot of perpendicular? हाँ? Yes, you are going to write the general point first. सबसे पहला काम है write the general point on BC. In terms of R लिखते हैं आप, and you are going to consider that general point as P point. So general point on BC you are written like 2R comma minus 2R minus 1 minus 4R plus 3. Let's say consider करते हैं इसको, that is point P point. What next? अगला क्या है? फाल्गुनी क्या होगा? You have taken a general point on that line, ले लिया general point. Then you are going to write the direction ratio of AP. A is available, P is available in terms of R. Write the direction ratio of AP. Direction ratio of AP. Clearly using x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. So it is, that point is there, 2r minus minus 1, that is plus 1, 2r plus 1, minus 2r minus 1 minus 8, that will become minus 2r minus 9, right? It is minus 4r, it is plus 3 minus 4 minus 1. That is the direction ratio of AP. The next step, what next? Now we have to find out R. R find out करना है. क्या करना होगा उसके लिए?
बताइए अमृता, क्या करना होगा? हाउ टू फाइंड आउट दैट आर? नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन में तो पुट नहीं कर सकते. यू हैव टेकन अ जनरल पॉइंट फ्रॉम दैट AP is clearly perpendicular to this line. AP जो है that is perpendicular to the line joining BC. मान लीजिए BC, यार उससे क्या दिक्कत है ना. AP is clearly perpendicular to the line joining BC. So AP is perpendicular to BC. So A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. So it is 2R plus 1 into 2 plus minus 2R minus 9 into minus 2 plus minus 4R minus 1 into minus 4 equals to 0. This is, समझ में आ रहा है? A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. What value you are getting? You will be getting the value of R. Please calculate and tell me the value of R. बता दीजिए fast. minus 1. Same. R equals to minus 1. Okay, good. So R equals to minus 1. Since you are getting the value of R as minus 1, तो R की वैल्यू minus 1 आ गई, तो that's a general point on BC you have taken as P point. R की वैल्यू minus 1 आ गई, R की वैल्यू minus 1 है, तो you are getting the coordinates of P as R की वैल्यू minus 1 put किया, that is minus 2. It is plus 2 minus 1, 1 and 7. Minus 2, 1, 7 will become the foot of परपेंडिकुलर. एंड आई थिंक उसके बाद में सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. मिड पॉइंट फॉर्मूला आप अप्लाई कर लोगे, यू विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज. स्ट्रेट वे प्रोसीजर है, आप गलती नहीं करेंगे. 2 पॉइंट डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं गिवन था, नहीं था तो ठीक है, यू रिटर्न द इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लिया आपने. टेक अ जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन, जनरल पॉइंट कंसिडर करिए एंड फाइंड आउट, कैलकुलेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट AP. AP इज परपेंडिकुलर टू BC, उसका यूज करेंगे तभी आप R की वैल्यू निकाल पाएंगे. Board exam question only. Find the equation of plane which contains the line of intersection of the planes. Find the equation of plane which contains the line of intersection of the two planes. Those two planes are given in terms of vector form. Vector equation of plane is given, actually it is a vector equation of plane in normal form. And whose intercept on the x-axis is equals to that on the y-axis. And whose intercept on the x-axis is equals to that on the y-axis. क्वेश्चन 3D वेक्टर के मिक्स आते हैं, क्वेश्चन कार्टेशियन और वेक्टर के मिक्स आते हैं, वैसे ही है यहाँ पर भी. सबसे पहला काम किया. अच्छा, जो स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट से अपने को क्लियर होना चाहिए. आपको क्या लगता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स, क्या स्टेटमेंट, इससे क्या समझ रहे हो आप? इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. मिशा बताओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन. हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स. दैट इज दो प्लेन का इंटरसेक्शन, एक लाइन और उस लाइन को कंटेन किए हुए कई सारे प्लेन्स की इक्वेशन. दैट्स गिवन बाय फैमिली ऑफ प्लेन्स. एक्चुअली फैमिली ऑफ प्लेन्स P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0. आपको लैंग्वेज से एकदम से क्लियर होना चाहिए. सबसे पहला काम, आप उसको कार्टेशियन में अपन एक्सप्रेस कर लेते हैं. R वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk. R वेक्टर that's a general one, xi plus yj plus zk. तो पहला प्लेन जो हो जाएगा, let's say the first plane is coming as xi plus yj plus zk, and using I dot i1 j dot j1 k dot k1, it will become x minus 2y plus 3z minus 4 equals to 0, right? Then P2, same way xi plus yj plus zk using I dot i1 j dot j1 k dot k1 minus 2x plus y plus z plus 5 equals to 0. Equation of plane containing the line of intersection of the two planes, directly without any hesitation just write it like P1 plus lambda P2 equals to 0. लिखा आपने, अरेंज करके लिख दूं, चलेगा डायरेक्टली. P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0. एंड अगेन डेफिनेटिव प्लेन की इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो क्या करना होगा आपको? लेमडा अननोन है, उसने दिया है यहाँ पर, क्या दिया है?
इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू दैट ऑन द वाई एक्सिस। वो प्लेन एक्स एक्सिस पर जितना इंटरसेप्ट बना रहा है सेम इंटरसेप्ट बना रहा है वाई एक्सिस पे। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए सो दैट यू कैन इवेलुएट द वैल्यू ऑफ लेमडा, आप लेमडा की वैल्यू इवेलुएट कर पाओ, राइट। तो P1 प्लस लेमडा P2 लिख लेते हैं अपन सबसे पहला काम। आप बताएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। P1 प्लस लेमडा P2 1 माइनस 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस दिस इज माइनस 2 प्लस लेमडा इंटू y plus 3 plus lambda, right, into z plus this is minus 4 plus 5 lambda equals to 0. That's the equation of plane. ये plane की equation आ गई P1 plus lambda P2 equals to 0. अब हम lambda find out करने के लिए ना equation of plane required है, लेमडा फाइंड आउट करेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। वो क्या बोलता है, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू दैट ऑन द वाई एक्सिस। क्या बोलते हो, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट। यार एक सीधी सी बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरसेप्ट व्हिच प्लेन इज मेकिंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट मतलब उसका y0 एज वेल एज z0, सही है। और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, y एक्सिस के ऊपर x0 और z0, राइट। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, पुट y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, y0 रखा, z इक्वल्स टू 0 रखा। That intercept would be equals to, that is going to be there in terms of lambda आएगा, आने दो, ये 0, that x is equals to 4 minus 5 lambda, साइन चेंज करके लिख रहा हूं, अपॉन 1 minus 2 lambda। प्लीज चेक कर लीजिए, ठीक भाई। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है तो x एक्सिस पे y और z 0 ना, एंड इंटरसेप्ट ऑन y axis, fine, x0 and z0, so we are getting y coordinate is coming as 4 minus 5 lambda, साइन चेंज करके लिख रहा हूं इधर भी, अपॉन lambda minus 2, ठीक। अभी क्या करना है उसमें, इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू दैट ऑन द वाई एक्सिस। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो यू विल बी गेटिंग द ओनली अननोन प्रेजेंट देयर विच इज लेमडा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। आई थिंक ये तो 4 minus 5 लेमडा, प्लीज करिए जरा, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर, लेमडा इज कमिंग एज 1, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। जब दोनों को इक्वेट करोगे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी तो यू विल बी गेटिंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन देयर। तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेट करने पे इट इज 4 minus 5 लेमडा अपॉन 1 minus 2 लेमडा इज इक्वल्स टू 4 minus 5 लेमडा अपॉन लेमडा माइनस 2। और डेफिनेटली 4 minus 5 लेमडा आप कैंसिल कर रहे हो, लेकिन कैंसिल कर रहे हो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। तो लेमडा की जो एक, इसको कैंसिल करते समय आप लिख देंगे लेमडा कुड बी इक्वल्स टू 4/5 एज वेल एज द सेकंड फैक्टर विच यू आर गेटिंग इज लेमडा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 minus 2 लेमडा विच इज इक्वल्स टू लेमडा इक्वल्स टू 1। So these are the two values of lambda which you are getting here, lambda equals to 4/5 as well as lambda equals to 1। ये दो वैल्यूज आ रही हैं, तो दो पॉसिबिलिटी हैं दोनों प्लेन की। लाइक इफ यू आर गेटिंग, इफ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, दोनों की वैल्यू लिखोगे, दोनों के करस्पॉन्डिंग आप प्लेन की इक्वेशन लिख के आओगे। दो रिजल्ट आ रहे हैं, दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। तो लेमडा इक्वल्स टू 1, व्हेन यू टेक लेमडा इक्वल्स टू 1, मैं आपको लिख रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे फाइनल रिजल्ट लिख के आने का है। जब आपने मान लीजिए लेमडा की वैल्यू 1 ली, देखो जरा बताना मुझे क्या आ रहा है। लेमडा की वैल्यू 1 ली तो इट इज कमिंग एज -x ना, लेमडा, इफ आई एम टेकिंग लेमडा इक्वल्स टू 1 फर्स्ट,
तो इट इज माइनस एक्स 1 लिया माइनस वाई प्लस 4z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप क्या करोगे, ये तो हो गई कार्टेशियन फॉर्म में, आप समझना है इस बात को, पूरे नंबर चाहिए अपने को बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो गिवन प्लेस थे ना वो वेक्टर फॉर्म में थे, तो आप क्या करोगे, जो रिजल्ट आया उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के आना, उसको फिर से वेक्टर में आपको लिखना है। कैसे लिखोगे, आर डॉट इसी फॉर्म में लिखने का अपने को, आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऑब्जर्वेशन से लिखना चाहिए अपने को, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 4k कैप, सही बोल रहा हूं, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट्स व्हाट आई वांट टू शो। भाई आप जो रिजल्ट आ रहा है उसको वापस से कार्टेशियन से वेक्टर में लिख के आओ। सेम इज हैपनिंग फॉर लेमडा इक्वल्स टू 4/5 से दूसरा प्लेन आएगा और उस प्लेन को भी आप वेक्टर के फॉर्म में लिख के आना, ठीक है ना, ये अप्रोच होगी। ये तो स्टेटमेंट है, इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स p1 प्लस लैम्डा p2 इक्वल्स टू 0। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन अ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 and perpendicular to the lines and perpendicular to the two lines. That means line is required which is passing through a point 1, 2, -4 and which is perpendicular to these two lines. पहले अटेम्प्ट करें उसके बाद ही फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात है कि हमें बहुत कंफर्टेबल होना है कि वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है ना। So equation of line which is passing through 1 2 -4, point is given, direction ratios are not provided to me, ठीक है, I'll take the direction ratio, क्या लेने वाले हैं, A B C, let's say LMN ले लो या ABC ले लो, DR। So equation of line is x minus 1 upon A equals to y minus 2 upon B equals to z plus 4 upon C। ABC मुझे फाइंड आउट करना, विच आई हैव टेकन एज अ डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट रिक्वायर्ड लाइन। अच्छा, दैट लाइन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। मैं तो डायरेक्ट काम कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोनों लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिखता हूं। कैसे डायरेक्ट कर सकता था वो भी समझाता हूं आपको, बट हाउ टू राइट दिस इक्वेशन ऑफ दैट लाइन इन द कार्टेशियन फॉर्म। फर्स्ट वन, पॉइंट इज व्हाट, 8 - 19 plus 10, right? Passing through this point 8 - 19 plus 10 and having dr as 3 - 16 and 7, है ना। x minus 8 by 3 y plus 19 divide by minus 16 equals to z minus 10 divide by 7. Now the second one, this is the first one, it is x minus, that's the line 1, let's say that's the line 2 and that's the required line जो हमें required है, L1 L2 और L से denote कर देते हैं। So it is x minus 1, it is x minus 15 divide by 3, y minus 29 divide by 8 and z minus 5, right। अच्छा, एक बात और भी है कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन एंगल बिटवीन द टू लाइंस वुड बिकम 90 डिग्री। सो यू कैन राइट L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0 in terms of direction cosines as well as in terms of dr भी लिखना है तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0। एक बात और क्लियर है, पॉइंट की तो जरूरत है नहीं यहाँ पर, आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली टाइम सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन रेशियो से ही मतलब है। समझ रहे हो क्या? देखो
L is perpendicular to L1, ठीक है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो L इज L के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, A B C, और इधर क्या है डायरेक्शन रेशियोज L1, 3 minus 16 and 7, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, and same is happening when L is perpendicular to that line L2. चलिए लिखते हैं, it is 3A minus 16B plus 7C equals to 0. L is perpendicular to L2. 3A plus 8B minus 5C equals to 0. मेरा पॉइंट ये था कि मैंने दोनों लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिखा, मैंने पॉइंट को भी लिखा, जरूरत ही नहीं थी ना, मुझे तो काम जो है वो किससे है, उसके डायरेक्शन रेशियो से ही मतलब था. फाइन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वुड बी देयर, A upon B upon C upon, yes please, A upon, it is 80 minus of 56, that is B upon 21 plus 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो कोई एरर की गुंजाइश नहीं होना चाहिए, C upon 24 plus 48, बढ़िया. So it is, what you are getting please, A upon 24, B upon 36, C upon 72, okay, clearly divisible by 12 से divisible है. Direction ratios हैं, these are the numbers which are proportional to direction cosines, can be written in the form of A by 2 equals to B by 3 equals to C by 6, और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी. We got the DRS यहीं पे, क्योंकि proportional value है, you can write the equation of line as x minus 1 by 2 equals to y minus 2 by 3 equals to z plus 4 divided by 6. क्वेश्चन नोट करना होगा आपको, बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस पे डिस्कस कर रहे हैं. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P, from the point P with position vector, from the point P with position vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap to the plane given in the vector form r dot 2i cap plus j cap plus 3k cap minus 26 equals to 0. To the plane r dot 2i cap plus j cap plus 3k cap minus 26 equals to 0. Also find the image of point in the plane. Also find the image of point P in the plane. So the requirement is of foot of perpendicular, requirement is of image, requirement is of length of perpendicular. From a point with position vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap to the plane which is given in the normal form. Foot of perpendicular, image and length of perpendicular, तीनों बातें रिक्वायर्ड है, फाइंड आउट कर सकते हैं. सबसे पहला काम, प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करें जरा हम. R vector is xi plus yj plus zk, so that plane in terms of Cartesian is coming as 2x plus y plus 3z minus 26 equals to 0. Right. That point available to you is with position vector 2i k plus 3j k plus 4k k, so I can take the point as 2, 3, 4. Right.
let's say that's the plane 2x plus y plus 3z minus 6 equals to 0. That's the point P point 2 comma 3 comma 4 minus 26. Okay, point is 2 comma 3 comma 4. When we talk about the foot of perpendicular या image दोनों की बात करें तो when we will be able to find out foot of perpendicular, तो foot of perpendicular आएगा तो with the help of the midpoint formula, section formula, image भी आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है. Let's say the foot of perpendicular coming as Q. सबसे पहला काम क्या करने वाले हो आप? The first step, you are going to write the equation of that normal. Instead of saying normal, you are going to write the equation of PQ, and let's say the Q dash is the point of image. So equation लिखते हैं हम. Equation of what is that line? PQ कहो या PQ dash कहो, लाइन तो सेम ही है. पॉइंट इज अवेलेबल. क्या पॉइंट है? 2, 3, 4. बोले सर डायरेक्शन रेशियो का क्या करना? क्या करना रचित, क्या करें? डायरेक्शन रेशियो कैसे लेके आए? भूलना थोड़ी ना, अभी रिसेंटली पढ़ा है आपने. हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन रेशियो. नैन्सी क्या करना? यहाँ कहाँ x2 माइनस x1? नहीं, मिशा, यस, एनी ऑफ यू, कोई भी? मुदित चुप क्यों रहा है, बता. हाँ, अरे क्या कर रहे हो यार आप लोग? बोलिए अमृता, सोच रही हैं काफी ज्यादा. नन ऑफ यू. परपेंडिकुलर नहीं होंगे. आप जब प्लेन की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 26 इक्वल टू 0 अगर प्लेन की इक्वेशन है तो आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आर 2, 1, 3. प्लेन की इक्वेशन में क्या जानते हो आप? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, दैट PQ लाइन इज नथिंग बट अ नॉर्मल टू दैट प्लेन ऑल्सो ना. PQ या PQ डैश जो है वो प्लेन के नॉर्मली तो है. सो आई कैन कंसिडर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दैट लाइन 2, 1, 3. एक्चुअली इज गोइंग टू बी अ प्रोपोर्शनल नंबर. ठीक है, आई कैन टेक दैट एज 2, 1, 3 और क्या. इट इज x माइनस 2 अपॉन 2. आप लोग भूल गए. y माइनस 3 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू z माइनस 4 डिवाइड बाय 3. दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन. भाई प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल है ना आपके पास, तो PQ भी तो नॉर्मल ही है. राइट, दैट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन. व्हाट नेक्स्ट? टेक अ जनरल पॉइंट, टेक इट इक्वल्स टू r. तो जनरल पॉइंट, let's say that point is Q, 2r plus 2, r plus 3, 3r plus 4. Right? What next? Two r plus 2, r plus 3, 3r plus 4. Yes, that's the general point Q. Q is clearly on the plane. Satisfy करेगा प्लेन की इक्वेशन को. Q is on the plane. Satisfies the plane. Please कर दीजिए satisfy. Find out the value of r. You are going to get the value of r. Please tell me the value of 5 by 1 by 2. Okay, fine. r is coming as 1 by 2. आप कर रहे हैं प्लेन की इक्वेशन में आपने पुट कर दिया. You are getting the value of r. r की वैल्यू आ रही है अगर 1 by 2. r की वैल्यू अगर 1 by 2 आ रही तो you'll be getting the q point. What is that q point? 2 into 1 by 2, 1 plus 2, 3. 3 plus 1 by 2, 7 by 2.
11/2. This is nothing but the foot of perpendicular. You want to write it in terms of position vector, please write it like 3 I cap plus 7/2 j cap plus 11/2 k cap. यही तो होगा. पोजीशन वेक्टर लिखना है तो लिख दो आप, उसमें कौन सी परेशानी. इफ यू आर गेटिंग द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, राइट, और क्यू आ गया तो इमेज में तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको. मिडिल पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला वुड बी देयर. कैन कंसिडर द पॉइंट क्यू डैश के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 लेंगे और आई होप यू कैन वेरी वेल राइट. कर सकते हो ना आप लोग. लग नहीं रहा वैसे, कुछ भूल जाते हैं. So you will be getting x2 y2 z2, but one more thing is there. Foot of perpendicular, sorry, foot of perpendicular is there, हो गया. Image हो गया. Foot perpendicular distance का क्या करना. ठीक है, आपने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला सर P अवेलेबल है, P गिवन है 2, 3, 4, ठीक है, और Q पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया. दोनों के बीच में आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. लेकिन आप एक बात भूल गए. आप करेंगे रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा, लेकिन आपको भूलना नहीं है यार. प्लेन के ऊपर अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, डायरेक्ट फॉर्मूला इज अवेलेबल. प्लेन में आप क्यों सोचने लगोगे इतना ना. दैट डायरेक्ट फॉर्मूला इज व्हाट. दैट डायरेक्ट फॉर्मूला इज गिवन बाय, इफ यू रिमेंबर, इफ यू टेक द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0. x1 y1 z1 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज डायरेक्टली गिवन बाय ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d मॉड ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. यू कैन अप्लाई द लेंथ ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला ऑल्सो, लेकिन क्यों करेंगे हम. डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है, यू कैन फाइंड आउट. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर that would be equals to PQ, which is equals to AX1 and you can very well calculate this. So all the three results are there, right? 6 mark का question है, पूरे marks मिलेंगे. Now the question is, show that the two lines, both the lines are given in terms of Cartesian form. Show that the two lines intersects. Also find the point of intersection also. देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रूव करना है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस प्रूव करना है तो दो अप्रोच है यहाँ पर जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो. बिल्कुल कर सकते हो, मैं दोनों बात कर लूंगा. लेकिन यहाँ पे उसने साथ ही साथ ये पूछ लिया कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो. तो इंटरसेक्टिंग होंगी, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि इंटरसेक्टिंग है, वो तो तय बात है. तो दोनों अप्रोच है, दोनों को देखिएगा. बट सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो डायरेक्टली वी गो फॉर वन ऑफ द अप्रोच इन विच दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन से थ्रू हम जनरल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. देखो टेक इट इक्वल्स टू r1, जनरल पॉइंट लेना, r1 के बराबर लिया इधर पे, x माइनस 4/2 y/0 z प्लस 1/3 इक्वल्स टू r2.
तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया दोनों लाइंस के ऊपर. लेट्स से दैट जनरल पॉइंट इज P पॉइंट ऑन द लाइन 1, है ना, दैट्स लाइन 1 L1, दिस इज लाइन L2. So it is 3R1 plus 1 minus R1 plus 1 and it is minus 1, है ना. Second point on the line 2 which is L2. So it is 2R2 plus 4 0, 3R2 minus 1, right. General point on line 1, general point on line 2. अब अगर मैं कहता हूं if these two lines are intersecting lines, अगर ये दो लाइंस intersecting lines हैं तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम कॉमन वैल्यू, कुछ वैल्यू होना चाहिए ऑफ R1 एंड R2 जिसके लिए आपको एक कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिलेगा ना. कुछ तो वैल्यू होना चाहिए R1 R2 के लिए जिसके लिए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए. लेट्स चेक फॉर दैट. अगर इंटरसेक्टिंग है तो मिलेगा आपको, और अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो यू विल बी गेटिंग एब्सर्ड वैल्यूज. ये आपको नहीं मिल पाएंगी R1 R2 की वैल्यूज. समझ रहे हो इस बात को. अगर इंटरसेक्टिंग है देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट सम रियल वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 जिसके लिए इंटरसेक्ट कुछ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन मिलेगा. और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है तो आप उस केस में R1 R2 की वैल्यूज खोज नहीं पाओगे. तो लेट्स चेक फॉर दिस. दोनों को इक्वेट किया हमने, कहा ओके लेट्स से अभी हमने मान लिया कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग है मतलब कोई पॉइंट R1 R2 की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग कॉमन होगा. इक्वेट किया x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट. ये तीन इक्वेशन, इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग z कोऑर्डिनेट, राइट. मुझे यहां पर सेकंड इक्वेशन से डायरेक्टली मुझे मिल रहा है R1 इक्वल्स टू 1, और थर्ड इक्वेशन से मुझे डायरेक्टली मिल रहा है R2 इक्वल्स टू 0, राइट. इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग y कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग z कोऑर्डिनेट. मेंशन करिएगा प्लीज. इक्वेटिंग x y z coordinates for point of intersection. ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यू विल बी गेटिंग सम रियल वैल्यू ऑफ R1 एंड R2, जो जैसे मैंने यहाँ पे इन दो इक्वेशन से फाइंड आउट करी, और वेरीफाई करूंगा कि वेदर इट इज सेटिस्फाइंग द थर्ड वन और नॉट. तीसरी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. करते हैं जरा. R1 अगर रखता हूं इधर तो इट इज कमिंग एज 3 + 1 विच इज 4 एंड R2 इक्वल्स टू 0 रखने पर वी आर गेटिंग 4. यस इट इज सेटिस्फाइंग द थर्ड वन. इतना काफी है. आप ये बोल सकते हैं कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये जो R1 R2 की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करी, दिस सेटिस्फाइंग द फर्स्ट वन. तो अगर ये सेटिस्फाई कर रही हैं तो फाइन, दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस. इतना काफी, बिल्कुल पर्याप्त है, परफेक्ट. दीज टू लाइंस सेटिस्फाइंग 4 इक्वल्स टू 4 यू आर गेटिंग फॉर द फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस. ऑल्सो वी वॉन्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, बोले सर अब क्या करना कहीं भी रख दो जैसा आपका मानो. You can keep R1 in the point P or you can keep R2 in the point Q. तो कॉमन ही आने वाला, सेम ही आने वाला, उसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. If I take R2 equals to 0, then Q point is clearly 4, 0, -1. As well as you can definitely verify, which is not needed, that R1 equals to 1 रखते हैं अपन तो 3 + 1 which is 4, -1 + 1 which is 0. And it is -1. You are getting same. आना ही चाहिए था, वो तो कंफर्म में आएगा. That is sufficient that you can say that okay these two lines are intersecting lines. This is the common point of, this is the point of intersection there. समझे क्या? Take a general point on line 1, take a general point on line 2 and equate कर दीजिए दोनों को.
तीन इक्वेशन मिलेंगे, इक्वेटिंग एक्स कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग वाई कोऑर्डिनेट, इक्वेटिंग जेड कोऑर्डिनेट। दो इक्वेशन सॉल्व करके r1 r2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, एंड इफ इट इज सेटिस्फाइंग द थर्ड वन तो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ठीक है ना? और अगर नहीं कर रहा है तो बात खत्म, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। हाँ, एज वेल एज जैसा आप कह रहे थे वो भी ठीक है, केवल इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर आपको शो करना है कि दीज टू लाइंस, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए तो करना ही होगा, तो ज्यादा बेहतर इसी के थ्रू बता दो आप। केवल आपको इतना बताना होता है कि दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, yes, then there is a approach here, these two lines are intersecting lines, that means these two lines are coplanar lines। coplanar lines कब होती हैं? जब दो लाइंस पैरेलल लाइंस हो या इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। पैरेलल लाइंस तो आप देख के डिसाइड कर लेते हो बाय डायरेक्शन रेशियोज, वैसा तो यहाँ नहीं हो रहा है। दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो उस केस में डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, वैसा तो नहीं है यहाँ पर। 3 - 1 0 and 2 0 3 which are not proportional। तो इंटरसेक्टिंग है, तो अगर इंटरसेक्टिंग है तो you'll have to show that the determinant, what is that determinant दोस्तों? If you remember, alpha 2 minus alpha 1, beta 2 minus beta 1, gamma 2 minus gamma 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 must be equals to 0। यहाँ क्लियर कर दूं मैं, those two lines are there in the form of Cartesian form, x minus alpha 1 upon L1 equals to y minus beta 1 upon M1 equals to z minus gamma 1 upon N1। Similarly the second line, तो यहाँ पे कैसे करोगे आप? वेरीफाई करिए। व्हाट इज द पॉइंट? क्या जो सेकेंड फर्स्ट लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो विल बिकम द सेकेंड रो, 3 - 1 0 2 0 3, और फर्स्ट रो दैट विल बिकम x2 - x1 या अल्फा 2 - अल्फा 1। पॉइंट क्या दोस्तों यहाँ पर? इट इज 1, इट इज 4, 1 - 4 लिख दूं डायरेक्ट? दिस इज 1 0, दिस इज -1 and this is again -1, so will become what? नहीं, it is alpha 2 minus alpha 1, तो minus minus would become +1, 0 ना? इस डिटर्मिनेंट को चेक कर लीजिए आप। हाँ, चेक करिए। आई थिंक विल बी गेटिंग दिस। ये इसको डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो इट इज -3, इट इज 3 - 3 इज बिकमिंग 0। आना ही है वो, तो कहाँ जाएगा वो? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बताना है तो इतना काफी है। आपको बताना है दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज टू लाइंस आर कोप्लेनर लाइंस, यस दैट इज देयर। अदरवाइज दैट इज द अप्रोच, और ये परफेक्ट है क्योंकि हमें इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, तो फिर इतना करना होगा। और केवल आपको बताना है इंटरसेक्टिंग है तो ये ठीक है। Now the question is, find the equation of plane containing the two parallel lines. The two parallel lines are given in terms of Cartesian form. X minus 1 by 2 equals to y plus 1 by minus 1 equals to z by 3. Second one is x by 4 equals to y minus 2 upon minus 2 equals to z plus 1 by 6. एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको, equation of plane which contains the two parallel lines, the question is like that. अगर वो नहीं भी लिखेगा parallel lines, तब भी आपको देख के समझ में आना चाहिए कि ये पैरेलल लाइंस हैं बाय ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन रेशियोज। 2 - 1 3 एंड 4 - 2 6 प्रोपोर्शनल वैल्यूज आर देयर, तो हैं डायरेक्ट पैरेलल हैं, नहीं भी स्टेटमेंट में लिखता है तब भी क्लियर है हमें। सो वी वांट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज कंटेनिंग दिस टू पैरेलल लाइंस, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट दैट प्लेन जो फाइंड आउट करोगे आप, वो प्लेन इस थर्ड लाइन को कंटेन करता है या नहीं करता है। तो देखते। अच्छा सवाल। सबसे पहले तो प्लेन फाइंड आउट करना है विच इज कंटेनिंग द टू पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो यू कैन फाइंड आउट दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन यूजिंग द डिटर्मिनेंट ऑल्सो। याद होगा आपको, दो लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो उस इंटरसेक्टिंग लाइंस को लिए जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, उसको पता लगाने के लिए अल्फा 2 - अल्फा 1, बीटा 2 - बीटा 1, गामा 2 - गामा 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 दैट डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस
again that determinant is there, x minus alpha 1, y minus beta 1, z minus gamma 1 will become the first row, second row and third row as it is. That means L1 M1 N1, L2 M2 N2 equals to 0. याद आया? बट ऐसा नहीं हो, यहाँ नहीं हो पाएगा बिकॉज ये दोनों लाइंस तो पैरेलल लाइंस हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द फर्स्ट लाइन, an equation of, so equation of plane containing the if I write equation of plane passing through the point x1 y1 z1, a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. That's the equation of plane which is passing through x1 y1 z1. So इक्वेशन ऑफ प्लेन जो दोनों लाइन को कंटेन किया है तो डेफिनेटली वो इस पॉइंट लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट है उसको भी सेटिस्फाई करेगा. कैन राइट डायरेक्टली एज a इंटू एक्स माइनस वन, b इंटू वाई प्लस वन प्लस c इंटू जेड. आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन राइटिंग दिस. पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना. विच पॉइंट? 1, -1, 0. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू 1 -1 0. ऑल्सो सेकेंड लाइन भी इसी प्लेन के ऊपर कंटेंड है, सेटिस्फाई करा दीजिए. विच पॉइंट प्लीज? 0, 2, -1 also satisfies the plane. जीरो रखा आपने. माइनस ए प्लस 3b माइनस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, वी आर गेटिंग वन ऑफ द रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी सी. लेकिन अभी एक और रिक्वायर्ड है. ध्यान से देखें, हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियो का अभी तक यूज नहीं किया है. इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज कंटेनिंग द टू पैरेलल लाइंस. तो प्लेन जो कि पैरेलल लाइन को कंटेन किए हुए हैं, तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल नहीं होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा. इफ टू लाइंस आर देयर, लाइंस हैं और लाइंस अगर प्लेन में हैं, these two parallel lines and these two parallel lines are there in a plane. तो प्लेन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? प्लेन का जो नॉर्मल होगा, that normal to the plane would be perpendicular to both the lines clearly. यूज करेंगे हम इस रिलेशन का, which will become a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, 2 -1 3. और you can take the second one, एक ही बात है क्योंकि प्रोपोर्शनल वैल्यूज हैं. 2a माइनस b प्लस 3c इक्वल्स टू 0. बढ़िया. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड दोस्तों, प्लीज बताइए. 9 -1 -2 plus 3, it is 1 -6 is coming as a upon 8 equals to b upon 1 equals to c upon -5, right? और ये क्या करोगे आप? इवन इफ यू टेक इक्वल्स टू लेमडा और इक्वल्स टू आर एंड सेटिस्फाई कर दोगे इसको इस प्लेन की इक्वेशन में. यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड प्लेन. जो रिक्वायर्ड प्लेन आएगा वो क्या आएगा भाई? इफ यू टेक इक्वल्स टू लेमडा, लेमडा तो कैंसिल होगा, काफी सारे सवाल किए आपने. तो फाइनली यू आर गेटिंग द प्लेन इज कमिंग एज 8 times x minus 1. प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. 1 into y plus 1 plus minus 5 into z equals to 0. It is 8x plus y minus 5z
equals to, this is minus 8 plus 1 which is minus 7, right? 7, 8x plus y minus 5z equals to 7. कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. ये तो हो गया प्लेन की इक्वेशन. वी गॉट द इक्वेशन ऑफ प्लेन. लेकिन अभी एक और काम बाकी है. उसने एक और काम दे दिया है. एक्चुअली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स ना. तीसरी लाइन सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है, कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओगे जो थर्ड लाइन है वो सेटिस्फाई कर रही है? हाउ टू सेटिस्फाई दैट? जो पॉइंट है, विच पॉइंट? इस लाइन के ऊपर पॉइंट, पॉइंट ऑन द थर्ड लाइन. दैट पॉइंट इज 2, पॉइंट ऑन द थर्ड लाइन. चेक कर लीजिए सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है उसको. प्लीज देखिए सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. इट इज 16 प्लस 1 17 माइनस 10 सेटिस्फाई कर रहा है. आर यू गेटिंग द आइडिया? अरे भाई जो लाइन के ऊपर पॉइंट है, विच पॉइंट? 2, 1, 2 सेटिस्फाई कर रहा है इस प्लेन को. लेकिन इतना ही काफी नहीं है. इतना ही काफी नहीं है. पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज आपको ये बताना होगा दैट लाइन इज, दैट प्लेन कंटेन्स द लाइन. तो प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए. 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा करना होगा आपको. भाई तीसरी लाइन प्लेन में कंटेंट है तो सेम कंडीशन जो पहले दो के लिए दी. इट इज चेक फॉर नॉर्मल टू द प्लेन इज ऑल्सो नॉर्मल टू द लाइन. क्या लगता है आपको? 8 into 3, 1 into 1, minus 5 into 5, 24 plus 1, 25. Are you getting this? You are getting 0. Satisfy करता है. दोनों चेक करना होगा. Point on the line satisfies the plane as well as normal to the plane is also perpendicular to the line. Concept clear है? पक्का? Just now we have discussed about the intersecting lines condition as well as equation of plane containing the two intersecting lines or two parallel lines. अभी अभी बात करी. Similar type of question कहा गया है the two lines intersects, then you have to find out the value of k and also you have to find out the equation of plane containing these two lines. When we said the two lines are intersecting lines and you have to find out the equation of, you have to find out the value of k. Directly you have to solve the determinant. Already we have discussed alpha 2 minus alpha 1, beta 2 minus beta 1, gamma 2 minus gamma 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2, that must be equals to 0. So 2, 3, 4 direction ratios of the first line, 1, 2, 1 direction ratios of the second line. Point given on the first line is क्या भैया? पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन -1, 1 एंड Q पॉइंट 3, K, 0. So it is alpha 2 minus alpha 1, 3 minus 1, it is K plus 1, 0 minus 1. ऑलरेडी इनफैक्ट अगर मैंने आपको क्लासेस रिव्यू करेंगे तो मैंने पूरा डेरिवेशन दिखाया था आपको इसका. कीप दैट इक्वल्स टू 0. कोप्लेनर लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन से ऐसा दिया है. डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ k. क्या आ रहा है k की वैल्यू? माइनस, एक जवाब सही जवाब, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. 9/2 -9/2. चेक करिए प्लीज. एक ही वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही है.
कितना आ रहा है k की वैल्यू 9/2 9/2 पैरेलल करें चलो k इक्वल टू 9/2 सिंपली टू सॉल्व अ डिटर्मिनेंट कीप दैट इक्वल टू 0 a की वैल्यू आ रही ना a की वैल्यू आएगी ठीक है लीनियर इक्वेशन रहेगी वो k की वैल्यू 9/2 आ गई देन इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज कंटेनिंग दिस टू लाइंस अगेन दिस कैन ऑल्सो बी सॉल्व एक्चुअली एक बात और भी है उसके लिए तो k की वैल्यू की जरूरत भी नहीं है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू लाइंस equation of plane can directly be written as x minus 1 y plus 1 z minus 1 2 3 4 1 2 1 that is equals to that determinant equals to 0 जब इसको सॉल्व करोगे you are going to get in terms of x y z प्लेन ही आएगा ये भी ले सकते थे आप x minus 3 y minus k z तब आप k की वैल्यू का यूज करते फिलहाल तो जरूरत ही नहीं लगी इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डायरेक्टली यू आर गेटिंग दैट नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स एंड इज पैरेलल टू द लाइन x minus 1/2 equals to y minus 3/4 equals to 5 minus z upon minus 5 कर रहे हैं आप अटेम्प्ट है ना सबसे पहली बात तो जो 2-3 बातें अपने को बहुत क्लियर होना चाहिए equation of plane passing through the line of intersection of the two planes. It is clearly a concept of family of planes which is p1 plus lambda p2 equals to 0. So equation of plane is it is p1 plus lambda p2 equals to 0. Which can be written as right on rearranging the terms you can write like 2 plus 5 lambda into x 1 minus 3 lambda into y minus 1 plus 4 lambda into z plus it is minus 3 plus 9 lambda equals to 0 ठीक है ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन से समझ में आता है क्लियरली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेम्डा लेम्डा फाइंड आउट करना उसने कहा दैट प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन लाइन की इक्वेशन को देख के एक बात और प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन ठीक है ये इसलिए दिया है सो दैट यू कैन इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ लेम्डा लेकिन एक बात और समझ लेना इसमें लाइन की इक्वेशन में कहीं जल्दबाजी में उसके डायरेक्शन रेशियोज 2, 4, -5 मत कंसिडर करिएगा क्या इंश्योर करना होगा आपको पहले इंश्योर करना होगा कि जो लाइन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए यहां ध्यान से देखिए x minus 1/2 y minus 3/4 इट इज 5 minus z गड़बड़ हो जाएगा यू हैव टू राइट इट z minus 5 upon 5 और अब करिएगा इसमें बात राइट अदरवाइज आपने इग्नोर किया और वहां -5 लिखा आपकी वैल्यू ऑफ लेम्डा गड़बड़ हो जाएगी नाउ दैट प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन प्लेन लाइन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू लाइन भाई प्लेन और लाइन अगर पैरेलल हुए तो प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा a1 a2 into this b1 b2 and c1 c2 equals to 0 only unknown present here is lambda you will be getting the value of lambda
और जो लेमडा की वैल्यू आएगी उसको वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, या इधर रख दीजिएगा, यू विल बी गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, राइट। आपने अगर ये इग्नोर किया और डायरेक्टली यहाँ पे -5 लिखा तो लेमडा की वैल्यू तो गलत आएगी, ठीक है ना, और इक्वेशन ऑफ प्लेन गलत हो जाएगी, मार्क्स कम हो जाएंगे डेफिनेटली। बड़ी एरर है ना वो। क्या वैल्यू आ रही लेमडा की? 1/6। ठीक है, बढ़िया, चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। इट इज कमिंग एज लेमडा इज कमिंग एज इक्वल्स टू, कंफर्म, -1/6। ठीक है, कैलकुलेशन एरर से तो बचना होगा अब आप लोगों को, मिनिमाइज करना है, क्या जीरो करना होगी, तभी तो आप फुल मार्क्स लेके आ पाएंगे बोर्ड्स में। तो एज वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बोर्ड लेवल, 3 dimensional geometry, vectors, determinant matrices. First question based on the 3 dimensional geometry. Find the vector and Cartesian equation of plane which bisects line joining the points 3, -2, 1 and 1, 4, -3 at right angles. Vector equation as well as Cartesian form में equation of plane required है which bisects the line segment joining the points at right angles. क्या सजेस्ट करते हो, क्या होना चाहिए बताइए, आप लोग बताइए। Which bisects the line segment joining the 2 points. Let's say this point is P point, this point is Q point. That plane bisects the line segment. तो bisect कर रहा है, इसका मतलब we are going to find out the point which is the midpoint. Midpoint निकाल लेते हैं। Let's say midpoint is, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम पेपर ही है, मिड पॉइंट को हमने R कहा, और R जो होगा दैट इज 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2 1 -1। सो मिड पॉइंट इज कमिंग एज 2, 1, -1। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट है ना, ये जो भी प्लेन है कुछ ऐसा है, दिस R पॉइंट इज देयर। और एक और बात क्लियर हो गई कि जो R पॉइंट होगा ये कहाँ होगा, डेफिनेटली इट इज ऑन द प्लेन, तो प्लेन के ऊपर है, तो वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट 2, 1, -1। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखूंगा a इंटू x -2 b इंटू y -1 प्लस c इंटू z +1 इक्वल्स टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन हो गई पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 1, -1। ठीक, अगला क्या उसने कहा है कि विच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है करते हुए, तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, हाँ, पैरेलल। आप यहां पे देखेंगे तो भाई प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC। ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर ही हुआ उसके, है ना, एट राइट एंगल्स लिखा उसने, तो लाइन सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है प्लेन के, तो जो प्लेन का नॉर्मल है, जो प्लेन का नॉर्मल है वो भी तो परपेंडिकुलर ही है, मतलब दीज टू विल बिकम पैरेलल। नॉर्मल और ये लाइन सेगमेंट दोनों पैरेलल हो गए, और दो लाइंस अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक, नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट, ठीक है, A1/A2। हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल के डी आर तो ABC हैं, लाइन सेगमेंट के डी आर निकाल लेते हैं। लाइन सेगमेंट के डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो ऑफ डी आर ऑफ PQ लिख देते हैं भाई, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। आप भी यही सोच रहे हैं, 1 - 3 - 2 4 + 2 6, राइट, -3 - 1 -4, दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। नॉर्मल के डी आर हैं ABC, so it is A/-2 equals to B/6
इज इक्वल टू सी अपॉन -4। हो गया हमारा काम। बट कंफ्यूजन नहीं होना कि सर मल्टीप्लाई कर दें, वैसा नहीं ना, नॉर्मल इज गोइंग टू बी पैरेलल टू दैट लाइन सेगमेंट। सो ठीक है, -2 टाइम्स x -2 प्लस 6 टाइम्स y -1 -4 टाइम्स z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। प्लीज बताइए मुझे व्हाट इक्वेशन यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ x by z। हाँ यस प्लीज, 2x -6y ओके प्लस 4z, हाँ चलिए ठीक है, प्लस 18। तो 2x -6y प्लस 4z प्लस 18 इक्वल टू 0। वेरीफाई कर लीजिए ऑल ऑफ यू। यस, प्लस 6 है, इट्स नॉट 18। कैलकुलेशन एरर नहीं हो, ध्यान रखिएगा। तो इट इज x -3y प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। जल्दबाजी में हम भूल ना जाएं कि उसने पूछा है वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि एक नंबर इस बात का भी होगा कि आप वेक्टर में भी लिख के बता दो उसको, और आपको आता भी है, आप उसको वेक्टर फॉर्म में जरूर लिख दीजिएगा, है ना। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखने वाले हो? यस हाँ, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? दिस इज द पॉइंट, है ना, विच इज 1 -3 2। लिखोगे कैसे? हाँ, r डॉट करा है, काफी काम किया, i -3j प्लस 2k। यस, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में और ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज को ठीक ढंग से पढ़ना था। कैलकुलेशंस चेक कर लो। So vector and Cartesian equation of plane which bisects the line joining the this segment। तो ठीक है, लाइन सेगमेंट की हमने डायरेक्शन रेशियो भी कैलकुलेट किया है, मिड पॉइंट कैलकुलेट किया, मिड पॉइंट इज देयर ऑन द प्लेन, सेटिस्फाई किया, और ये जो लाइन सेगमेंट है नॉर्मल के पैरेलल होगा। तो a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2 यूज करते हुए प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की और दोनों फॉर्म में लिख दिया। ठीक, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पे, P be a point 3, 2, 6 and Q be a point on the line। Line is given in the vector form। Vector form में line की equation given है, a vector plus mu times b vector passing through this point and parallel to this vector। ठीक है, find mu, you have to find out the value of mu for which PQ vector is parallel to the plane x minus 4y plus 3z equals to 1। P एक पॉइंट दिया है, Q पॉइंट इज देयर ऑन द, आपने अटेम्प्ट किया है ना, Q बी ए पॉइंट ऑन दैट लाइन। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि वेक्टर फॉर्म में लाके, वेक्टर फॉर्म में दिया उसी फॉर्म में सॉल्व करें, और एक है कार्टेशियन में लाके बात करें। दोनों देखो, अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं पहले, तो सबसे पहले तो लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लाइन की इक्वेशन को कार्टेशियन में ले आते हैं, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन को अगर कार्टेशियन में लाते हैं तो पॉइंट ऑन दैट लाइन इज 1 -1 and 2। So point on the line is 1, -1 and 2, and is which is that line is parallel to this। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे -3 1 5। लिख लेते हैं, कैन राइट लाइक x -1 अपॉन -3 इक्वल्स टू y प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू z -2 अपॉन 5। लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। P पॉइंट ऑलरेडी गिवन है, Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, क्या करें? Q पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, जनरल पॉइंट, टेक अ जनरल पॉइंट देयर, इक्वल्स टू R लिया आपने, और इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट, और उसको अपन Q अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। So Q पॉइंट को लिया हमने, that Q point भी can be taken as -3R plus 1, R minus 1 and 5R plus 2। कैलकुलेशन चेक करते जाइएगा। P point is already provided to you as 326। P point is 326। और वो कहता है कि find mu for which, okay, find mu for which
अच्छा इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, अगर चलिए ठीक है, फाइंड म्यू फॉर विच पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन। तो एक्चुअल में इसको म्यू कहना चाहिए क्या मुझे? बोलिए। चलिए ठीक है, करते हैं, अभी आगे सॉल्व करते हैं। वी हैव टेकन अ जनरल पॉइंट, ले लिया इन टर्म्स ऑफ आर। चल सोचने वाली बात है। पी क्यू, अब उसने कहा है कि पी क्यू इज पैरेलल टू द प्लेन। क्या मतलब हुआ? पी क्यू प्लेन के पैरेलल है, तो पी क्यू अगर प्लेन के पैरेलल है तो सबसे पहला काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, minus 3r plus 1 minus 3, so it will be minus 3r minus 2, r minus 3, 5r plus 2 minus 6, 5r minus 4. This is nothing but the direction ratio and direction ratio of PQ. PQ का direction ratio हुए। उसने कहा ये PQ प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन के पैरेलल है तो इसका सीधा सा मतलब PQ अगर प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन का नॉर्मल PQ के परपेंडिकुलर होगा। A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. We'll use here A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. It is minus 3r minus 2 into प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 1 minus 4 3. Right. A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0. ठीक है ना? पी क्यू प्लेन के पैरेलल है, तो हम कंसेप्ट क्लियर है भाई। पी क्यू प्लेन के पैरेलल है तो प्लेन के बारे में हम क्या जानते हैं? प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, तो प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू लेकिन हमें वेक्टर फॉर्म में रिक्वायर्ड है म्यू की वैल्यू। प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ आर। and we'll be also looking for a method which is based on the वेक्टर फॉर्म से ही अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो डायरेक्टली हमें म्यू की वैल्यू मिलेगी। वन बाय फोर वैल्यू ऑफ आर इज कमिंग एज 1/4। ओके, वैल्यू ऑफ आर इज कमिंग एज 1/4। तो क्यू पॉइंट वुड बी, क्यू पॉइंट के लिए यहां पे रखेंगे अपन पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा? बट उसने म्यू की वैल्यू पूछी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पॉइंट क्यू वुड बी 1 minus 3/4 which is 1/4, r minus 1 which is 1/4 minus 1 which is minus 3/4 and 5/4 plus 2, 13/4. That would be the value of q, sorry, that would be the point q. लेकिन I want value of mu, है ना? इसको मैं जरा वेक्टर फॉर्म से ही सॉल्व करें और जरा फिर चेक करते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिया मैंने, तो क्या किया? आई हैव टेकन अ जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन। जो यहाँ पे किया था वही काम यहाँ पर भी किया। जो डिफरेंस है हमने आर लिया है उस बात को समझना। अब जनरल पॉइंट मैंने लाइन पे डायरेक्टली लिया, जनरल पॉइंट लिया। लेट्स से दैट जनरल पॉइंट उसको आर नॉट से डिनोट करूँ या आर से डिनोट कर देता हूँ। जनरल पॉइंट ऑन लाइन, जो भी जनरल पॉइंट है इट इज गोइंग टू बी, और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। आई कैप के साथ में क्या आएगा? 1 minus 3 म्यू, 1 minus 3 म्यू आई कैप। अरेंज कर लिया टर्म्स को। लेट्स टेक एनी जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा लाइन के ऊपर फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ म्यू।
यहाँ जो हमने आर कैलकुलेट किया दैट इज नथिंग बट द म्यू ओनली. हम चेक करें जरा उसको. प्लस -1 प्लस म्यू टाइम्स जे कैप प्लस 2 प्लस 5 म्यू के कैप. आई हैव टेकन दिस द जनरल पॉइंट. ये ले लिया मैंने डायरेक्टली, जो दिया था उसी को उठा लिया मैंने, रीअरेंज किया. ठीक, ये पॉइंट सेम है ना. एक्चुअली यहाँ पर जो मैंने जो कुछ भी किया है आई हैव टेकन इन टर्म्स ऑफ आर. ये जो आर कैलकुलेट किया दैट्स नथिंग बट द वैल्यू ऑफ म्यू ओनली. ये वही तो है और क्या है. ये जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन. ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, जनरल पॉइंट पी पॉइंट क्या है. पी पॉइंट पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखूंगा मैं, तो पी पॉइंट को अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखता हूं तो लिख लेता हूं, उसमें कौन सी परेशानी. 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप. ये पॉइंट क्यू पॉइंट हो गया, जनरल पॉइंट क्यू. फिर वो कहता पी क्यू इज पैरेलल टू दैट प्लेन. बात तो फिर से वही हो गई. पी क्यू अगर प्लेन के पैरेलल है, तो पी क्यू अगर प्लेन के पैरेलल है तो यू कैन वेरी वेल राइट पी क्यू ऑल्सो. कैसे लिखोगे पी क्यू यहां पे, हम चलो पूरा वेक्टर फॉर्म में ही कर लें. पी क्यू वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू. प्लीज बताते जाइएगा मुझे. पी क्यू वेक्टर 3i कैप माइनस दिस, सो इट विल कम i कैप के साथ में कितना आ रहा है, j कैप के साथ में कितना आ रहा है, और k कैप के साथ में कितना आ रहा है. पी क्यू पोजिशन वेक्टर या पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, वैसा कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है. चलो ठीक है. 1 माइनस 3 म्यू माइनस 3, तो इट इज -3 म्यू माइनस 2. गुड. अब जे केप के साथ में -1 प्लस म्यू -2, और इट इज म्यू माइनस, बढ़िया, इट इज 2 प्लस 5 म्यू माइनस 6, 5 म्यू माइनस -4. ओके, ये पी क्यू वेक्टर हो गया. बढ़िया. प्लेन की इक्वेशन, इसको भी वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं. देख ही लें अब जरा. आर डॉट जो उसका नॉर्मल होगा उसी के तो नॉर्मल फॉर्म में तो लिखेंगे यहाँ. तो आर डॉट आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप -1 इक्वल्स टू 0. जब आप प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में लिखते हो तो ये प्लेन का नॉर्मल ही तो है, वेक्टर फॉर्म में. ठीक है, उसने कहा दोनों पैरेलल हैं. प्लेन इज पैरेलल टू दैट पी क्यू, तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, राइट. नॉर्मल टू प्लेन विच इज आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप वुड बी परपेंडिकुलर टू पी. एंड दोस्तों, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ठीक, सो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं इन दोनों का. i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बाकी सब 0. तो इट विल बिकम -3 म्यू माइनस 2 इंटू 1 प्लस म्यू माइनस 3 इंटू -4 प्लस 5 म्यू माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 0. वो तो सेम ही आने वाला है. एंड प्लीज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू. इट्स 1/4. इसीलिए मैं जब आपको यहाँ लिख रहा था कि आई हैव रिटन लाइक इक्वल्स टू आर जनरल पॉइंट, जब हम लेते हैं तो इस लाइन के अकॉर्डिंग आई कैन टेक दैट जनरल पॉइंट एज म्यू ले सकता था वहीं पर. जनरल पॉइंट ही तो है, वो भी उसमें क्या है. ठीक है, ये पूरा वेक्टर में सॉल्व कर लिया. जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन. ठीक है भाई, जनरल पॉइंट ऑन दैट लाइन रीअरेंज करके लिख लिया टर्म्स को. पी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, एंड देन नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन को लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, और दोनों परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया. दोनों तरीके से हो गया, कार्टेशियन एज वेल एज
वेक्टर, और यहाँ पे जो हमने r लिया था दैट r इज नथिंग बट म्यू, ये जो वैल्यू ऑफ r मिली है इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ म्यू, क्योंकि जनरली तो है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन इन द जनरल फॉर्म में तो है, ये म्यू के टर्म्स में जब लिखा है हमने, ठीक है।